Today we have another interesting topic of antihypertensive drugs. Today we will discuss about the pharmacology of adrenergic blockers. This is CVS pharmacology, cardiovascular system pharmacology, in which we will study about the adrenergic system, something about the system, and then we will proceed to these adrenergic blockers which have many role in CVS pharmacology or treating hypertension. So first of all, what is adrenergic system? Adrenergic basically noradrenaline and adrenaline, epinephrine, norepinephrine are releasing from the brainstem basically, and it goes to the CVS system on blood vessels and onto the heart through alpha receptors and beta receptors. It means alpha receptor and beta receptors are the reception point for adrenergic catecholamines. That means when adrenergic system, adrenaline or noradrenaline releases from brain, it goes to the blood vasculature system on blood vessels and heart, and then it will affect the CVS system. See, there are basically two receptors of adrenergic system which are present in our CVS system. These are basically alpha blockers, alpha receptors and beta receptors. Basically alpha 1 receptors are present on blood vessels and beta 1 receptors are present on heart. Then what happened? When adrenaline releases from brain, it reaches to the blood vessels, it will increase the peripheral resistance. And what happens if it will release from brain and goes to the heart on beta 1 receptor, it will induce or increase the cardiac output. That means we know that blood pressure is equals to cardiac output into peripheral resistance. That means adrenergic system increases cardiac output and peripheral resistance. Means beta 1 receptors are present on heart and alpha 1 receptors are present on the wall of blood vessels, and adrenergic system from brain releases noradrenaline, norepinephrine from brain to the heart and blood vessels, and it will increase peripheral resistance and also cardiac output, and ultimately it will increase the blood pressure. That means what? The adrenergic system basically increases the blood pressure. कहने का मतलब है कि ब्रेन से जो नॉरएड्रेनालिन रिलीज हो रहा है वो क्या कर रहा है, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा रहा है. अगर किसी कारणवश हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया हुआ है तो उसको क्या करता है, बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे जो आर्टिक नॉच है वहां पे बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ये इस चीज को सेंस कर लेता है और सेंस करने के बाद फ्यूअर इंपल्स ट्रांसमिट करता है ब्रेन के पास,
इससे क्या होते हैं, जो हमारा एड्रीनर्जिक सिस्टम है वो एड्रीनर्जिक सिस्टम का आउटफ्लो होना इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ये एड्रीनर्जिक सिस्टम नॉरएड्रेनालिन हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर आएगा तो इससे क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और यही अगर एड्रीनर्जिक सिस्टम यानी कि नॉरएड्रेनालिन हमारे हार्ट के ऊपर आएगा तो इससे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, और अल्टीमेटली जो बीपी डिक्रीज हो गया हुआ है किसी कारणवश, वो बीपी वापस से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस से क्या हो गया, बीपी आपका जितना नॉर्मल था वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमारे बॉडी के अंदर खुद ब खुद एक तरह से होम्योस्टैसिस यानी कि इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट मेंटेनेंस प्रोसेस है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि जो घटा हुआ बीपी है उसको ये वापस से नॉर्मल कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए, लेकिन हाइपरटेंशन के केस में क्या हो रहा है, हमारे पास में ऑलरेडी बीपी इंक्रीज है, बहुत ज्यादा इंक्रीज है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, ये जो एड्रीनर्जिक सिस्टम है जो रिलीज हो रहा है, यहाँ से ब्रेन से रिलीज हो रहा है, वो क्या है, उसको हम उसके जो इफेक्ट है उसको हमें कम करना होगा। तो हम क्या कर रहे थे, एक तो हमने पढ़ा था क्या, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स हमने पढ़ा। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स तो क्या करेगा, यहीं से आपके जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है उसको रोक देता है ना। लेकिन ये जो एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स हैं वो क्या करेंगे, बेसिकली जो एड्रीनालिन या जो नॉरएड्रेनालिन है जो सेक्रीट हो रहा है नॉरएड्रेनर्जिक सिस्टम, वो आपके सीवीएस के ऊपर आ रहा है, उसके आउटफ्लो को ना बंद करके ये क्या करेगा, एड्रीनर्जिक सिस्टम का जो इफेक्ट है उसको नहीं होने देगा। यानी कि जो उसका रिसेप्शन पॉइंट है अल्फा 1 और बीटा 1 जो रिसेप्टर है उसको बेसिकली ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो नॉरएड्रेनालिन का जो काम है, बेसिक काम क्या है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करना और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना, वो दोनों नहीं हो पाएंगे। तो इससे क्या होगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिक प्रोसेस हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर जो एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स हम पढ़ रहे हैं उसका यही बेसिक एम है कि हमें बीपी को डिक्रीज करना है। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ these adrenergic blockers. These are alpha blockers and beta blockers. Also there are beta plus alpha blockers. Basically beta plus alpha blockers are the category of beta blockers. That means these are basically beta blockers, but they have some alpha blocking role also. So there are basically only 2 types of adrenergic blockers, alpha blockers and beta blockers, but there is a subtype of beta blockers, that is beta plus alpha blockers. We can separate it from the beta blockers category to a separate class, beta plus alpha blocker. These are some examples of these blockers, adrenergic blockers. For example, alpha blockers have example prazosin, terazosin, doxazosin. Next one is phentolamine, phenoxybenzene. Similarly, beta blockers have some examples propranolol, atenolol, metoprolol. And beta plus alpha blockers have 2 examples, carvedilol and levetiracetam. See, these prazosin, terazosin and doxazosin are selectively blocks the alpha 1 receptors. That means these are alpha 1 selective blockers. अल्फा 1 के रिसेप्टर्स को ये सेलेक्टिवली बाइंड करता है, मतलब ये ज्यादातर अल्फा 1 के रिसेप्टर को ही बाइंड करेगा। ठीक है, दूसरा जो फेंटोलामाइन है, फेंटोलामाइन आर नॉन सेलेक्टिव, दैट मींस इट मे ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर और इट मे आल्सो ब्लॉक द अल्फा 2 रिसेप्टर. There are some examples of non
type alpha blockers like phenoxybenzene. Phenoxybenzene are the example of non-equilibrium type. That means it forms a covalent bond between receptor and these drugs, so that these drugs are not competitively bind to the receptors, but these are the examples of competitively binding blockers और antagonists. मतलब ये क्या करेगा, अभी हम लोग देखेंगे कि जो एंटागोनिस्ट है उसमें कॉम्पिटिटिवली बाइंड, मतलब कौन जल्दी जाके बैठ जाता है. अगर ये ब्लॉकर्स जाके रिसेप्टर्स के ऊपर ब्लॉक कर देंगे तो जो नॉरएड्रेनालिन है वो आके इसमें बाइंड नहीं कर पाएगा और उसका इफेक्ट नहीं हो पाएगा. तो ये है कॉम्पिटिटिव टाइप. और ये जो फिनॉक्सीबेंजीन है वो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप है, यानी कि ये कोवैलेंट बॉन्ड मतलब परमानेंट बॉन्ड बना देता है, जिसकी वजह से ये क्या है, आपको जो इफेक्ट है वो इफेक्ट कॉम्पिटिटिवली बाइंड नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट वन इज बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रानोलॉल है. दिस इज नॉन सिलेक्टिव, यानी कि ये बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों को के ऊपर बाइंड कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है. एंड एटिनोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल आर द बीटा 1 कार्डियो सेलेक्टिव, यानी कि जो बीटा 1 है वो आपके हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और बेसिकली ये हार्ट के ऊपर जाके बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, कार्डियो सेलेक्टिव है. और जो आपके कार्बिडोलॉल एंड लेविटालॉल है ये क्या होंगे, बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर्स, ये दोनों होंगे. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारा बीपी रिड्यूस होगा किसके ऊपर, कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से बीपी रिड्यूस होगा. तो now we have mechanism of action of these adrenergic blockers. First of all, we have to study how these noradrenaline will play a role into the intracellular action or its action. There are basically 6 steps in the mechanism of action of noradrenaline to produce a intracellular action. यानी कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो नॉरएड्रेनालिन है उनका एक्शन किस तरह होता है. फिर हम ये समझेंगे कि ये जो नॉरएड्रेनालिन के जो रिसेप्टर्स हैं, कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स कुछ भी हो सकते हैं. यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर है या बीटा रिसेप्टर है, उसके ऊपर बेसिकली ये क्या करते हैं, जो नॉरएड्रेनालिन है हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू आ रहा है. यहाँ पे जो इफेक्टर सेल है, सपोज कार्डियक सेल्स हैं, हार्ट है या ब्लड वेसल्स है, उनके ये सेल हैं. अब यहाँ पे ये अल्फा या बीटा ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट है यहाँ पे. और यहाँ पे क्या होगा, आपके जो नॉरएड्रेनालिन है वो आ रहा है और वो आने के बाद इंट्रासेल्युलर एक्शन, जो भी एक्शन है इनका, जैसे हार्ट के ऊपर आएगा तो हार्ट के ऊपर कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा. इसी तरह से अगर ब्लड वेसल्स के ऊपर आया तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेगा. तो ये इनका इंट्रासेल्युलर एक्शन प्रोड्यूस हुआ. तो अब क्या है इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन हमारा क्या है 6 स्टेप्स होते हैं. कौन कौन से 6 स्टेप है, सबसे पहले सिंथेसिस होगा हमारा, क्या, सिंथेसिस ऑफ नॉरएड्रेनालिन का जो प्रोसेस है, डोपामिन, सिंथेसिस ऑफ डोपामिन होगा. कैसे, टायरोसिन हमारे एक्सोप्लाज्म के अंदर आया Na+ के हेल्प से, वो क्या बनाएगा, डोपा बनाएगा. किसके, ये यहाँ से हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू टायरोसिन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डोपा में कन्वर्ट हो गया, यानी कि डाइहाइड्रोक्सी, आपका यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, ये होता है डोपा, और ये डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन से. अब सेकेंड स्टेप क्या है, अपटेक ऑफ दिस डोपामीन इनटू द स्टोरेज वेसिकल्स. इसके अंदर ये डोपामीन आया. अब ये डोपामीन कहाँ पे, वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो गया. स्टोर होने के बाद में क्या होता है, ये रिलीज ऑफ Na, ये जो आप देख रहे हो रिलीज ऑफ Na,
ये रिलीज ऑफ Na कैसे होता है? जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आता है, कोई भी रिस्पॉन्स आया, स्टिमुलेशन हुआ, मिला, और उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल आया, इससे Ca+2 की एंट्री यहाँ पे इंक्रीज हो गई और ये क्या कर देगा? वेसिकल्स को बर्स्ट कर देगा, यहाँ से ये बर्स्ट हो जाएंगे और बर्स्ट होने के बाद में इनका रिलीज स्टार्ट हो गया। ये आपके जो सिनेप्स है उसके अंदर ये आ गए और उसके बाद में ये कहाँ जाएंगे? आपके जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं उसके अंदर आएंगे। अगर ज्यादा है तो यहाँ पे कुछ प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये इसको वापस से ऑप्टिक भी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है? आपका इंट्रासेल्युलर एक्शन इसके बाद में शो कर देगा। यानी कि रिलीज ऑफ Na के बाद में ये क्या करता है? बाइंडिंग टू रिसेप्टर, रिसेप्टर पे बाइंड कर दिया, इंट्रासेल्युलर एक्शन शो कर दिया, उसके बाद में ये क्या हो जाएंगे? वहां से रिमूवल ऑफ Na, यानी कि यहाँ से ये रिमूव आउट हो जाएंगे और रिमूव आउट होने के बाद में इनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है एक्शन ऑफ नॉरएड्रेनालिन या एड्रीनर्जिक सिस्टम। एड्रीनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनका क्या एक्शन होता है, इस तरह से ये एक्शन शो करते हैं। Now the question is, what is the mechanism of action of these adrenergic blockers? यानी कि अब क्या ये जो adrenergic blockers है वो कैसे काम करते हैं? तो it is very simple. Alpha और beta blockers, that means adrenergic blockers, will competitively bind with these alpha or beta receptor and will interfere with the interaction with the intracellular action। यानी कि ये जो अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये कॉम्पिटिटिवली पहले जाके इस पे बाइंड कर गया, अब यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे तो जो ये हमारे नॉरएड्रेनालिन व्हाइट कलर वाले जो आपको दिख रहे हैं, नॉरएड्रेनालिन ये अब यहाँ पे आ नहीं पाएगा। आ नहीं पाएगा तो क्या होगा? ये जो इसका जो एक्शन था वो एक्शन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, यानी कि जो आपका कार्डियक आउटपुट था और पेरिफेरल रेसिस्टेंस था वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि आपका बीपी रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि बेसिकली जो अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स हैं वो अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर जाते हैं और जिसकी वजह से ये जो एक्शन है नॉरएड्रेनालिन का, एड्रीनर्जिक सिस्टम का, उनको नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, पेरिफेरल रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गया और अल्टीमेटली बीपी रिड्यूस हो जाएगा। अब इसमें हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इन सब के जो प्राजोसिन है, प्रोप्रानोलॉल है, कार्वेडिलॉल है, इन सब की फार्माकोलॉजी की स्टडी करेंगे। थैंक यू।